Hello dear students, welcome to the class today. So children, we are carrying on with the second chapter, Socialism in Europe and the Russian Revolution. Russian Revolution, already a big point in history. Changes in Europe had happened and Russia has witnessed these changes. Russia it had happened in a very big manner. These changes that had happened, ये जो बदलाव हो रहे थे रशिया में, it was affecting the other parts of Europe as well. Other parts of Europe, Britain, France, Germany, Portugal, Spain, all these countries were witnessing changes. And after becoming a part and parcel of all these games, now the labor and their power was increasing day by day. काफी तेजी से इनका पावर जो है वो बढ़ते जा रहा था. आफ्टर इंक्रीजिंग देयर पावर, जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा, दैट लेबर पार्टी वाज फॉर्म्ड इन ब्रिटेन में लेबर पार्टी. अब क्या हुआ, दीज लेबरर्स, ये जो मजदूर थे, आई एम सॉरी, मजदूर नहीं कहेंगे, वर्कर्स कहेंगे, ये जो इंडस्ट्रीज में काम कर रहे थे, द पीपल हु वर वर्किंग इन द इंडस्ट्रीज, देयर पावर वाज इंक्रीजिंग. एंड अब क्या हुआ, अपने हक का डिमांड करते करते, मूविंग टुवर्ड्स अ सोशलिस्ट सोसाइटी, नाउ दे स्टार्टेड डिमांडिंग अ सोसाइटी वेयर एवरीबडी वाज इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, प्राइवेट प्रॉपर्टी ओनर्स एंड देयर पावर शुड बी कन्फ्रंटेड. प्राइवेट प्रॉपर्टी ओनर्स को अब खत्म करना था, इन लेबर्स को आगे लेके आना था. सो इन दैट वे इन्होंने क्या किया, सबसे पहले जो एस्टैब्लिश हुआ था, उसमें द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव स्टडीड वाज सेकंड इंटरनेशनल. ठीक है, सेकंड इंटरनेशनल. अब the power of the workers was increasing all over the world. पूरी दुनिया में, it started from Europe, लेकिन अब बाकी के जगहों में, including India. Yes, many Indians were also very influenced by the activities that was happening in Europe. क्योंकि ब्रिटिशर्स यहाँ पे थे, तो उनसे रिलेटेड न्यूज़पेपर्स आते थे, मैगजीन्स आते थे, वो अपनी चीजों को मार्केट में लेके तो आते थे, बट ग्रेजुअली एंड स्लोली दिस न्यूज वाज स्प्रेडिंग टू द लोकल जेंट्री ऑल्सो. यहाँ के जो रहने वाले थे, उनको समझ में आने लग गया, दीज आर द पीपल हु आर ट्राइंग टू डोमिनेट अस. हमको दबाने की कोशिश कर रहे हैं, हमको परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं. फॉर दैट पर्पस they decided that they would be opposing. अब इन्होंने डिसाइड कर लिया कि अब ये इनको अपोज करेंगे. जर्मनी में SPD was formed and पावर, चूंकि वर्कर्स का पावर बढ़ रहा था, लेकिन they were unable to form a government. Forming a government is a big issue. काफी बड़ी चीज होती है. Got it? Labour Party was there in Britain, Socialist Party was there in France. फ्रांस में देयर वाज सोशलिस्ट पार्टी. ये सारी पार्टीज का नाम आपको पता होना चाहिए, बिकॉज दीज वेयर द पार्टीज ऑफ द पुअर पीपल. ये गरीबों की पार्टी थी, ये वर्कर्स की पार्टी थी, ये कम्युनिस्ट की पार्टी थी, हु वर स्ट्रगलिंग हार्ड. लेकिन व्हाट हैपेंड, सोशलिस्ट वेर ट्राइंग अ लॉट, बट दे वर अनेबल टू सक्सीड. दे नेवर सक्सीडेड in forming a government in Europe, and they were represented by strong figures. Parliamentary politics mein, they were very strong figures. Their ideas had shaped the legislation, lekin government continued to be run by conservatives. All the government that was run, abhi tak conservatives, liberals, radicals, government यही बना रहे थे. पार्टी इन लोगों ने बना ली थी, लेकिन द पावर वॉज नॉट गोइंग इन देयर हैंड्स. गॉट इट? So this was the struggle that had started,
and liberals, radicals, conservatives together were struggling hard to maintain themselves in power. Power politics change हो रहा था. Gradually and slowly, power was shifting towards the laborers. Socialism was getting a hold. Socialist and their power was increasing all over. खाली रशिया की बात नहीं है. This was happening all over Europe. As a result, अभी हमने कहां पे स्टॉप किया? We have stopped at 1914. अब चल के देखते हैं कि 1914 के बाद what all incidents had happened. Let's try to understand the incidents that had happened after 1914. क्या इंसिडेंट हुए हैं 1914 में? सबसे पहला, the first thing that had happened is the Russian Revolution. अभी तक हमने जो पढ़ा, that was all about socialism. ठीक है? This was all the idea, this was all the thing that was increasing the meaning of socialism, that was showing the people the path for a struggle, for equality, and taking the power from the big people and getting it in their own hands. आम आदमी के हाथ में पावर आने की बात हो रही थी, लेकिन ये कैसे होगा? How it would be formalized, how it would be a reality. इसको रियलिटी कैसे बनाएंगे? अब क्या हुआ? In the meantime happened the Russian Revolution. अब हम आते हैं रेवोल्यूशन पे. क्या होता है? The anger inside the people get aggravated. वो बहुत तेजी से आने लगता है और होते होते क्या होता है? It suddenly is a blast. एक blast होता है. One of the least industrialized of the European states, it was reversed. बहुत इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट नहीं था ये. रशिया की बात हो रही है. इंडस्ट्रीज वेयर देयर द वे इट वाज देयर इन यूरोप. आई मीन रशिया, आई मीन ब्रिटेन में, जर्मनी में, फ्रांस में, उनके कंपैरिजन में रशिया में इंडस्ट्रीज वेयर लेस. कम इंडस्ट्रीज थी. सोशलिस्ट टुक ओवर द गवर्नमेंट इन रशिया थ्रू द अक्टूबर रेवोल्यूशन ऑफ 1917. सोशलिस्ट, अब देखो कहानी पलट रही है. टुक ओवर दी गवर्नमेंट इन रशिया इन 1917. स्ट्रगल कब शुरू हुआ? 1914 से ये शुरू हो गया था. 3 साल लग गए. इन्होंने पूरा पावर अपने हाथ में ले लिया. कैसे? और दैट इज द स्टोरी विच वी वुड बी डिस्कसिंग फर्दर. अभी आगे इसी के बारे में हम बात करेंगे. एंड मोनार्की, देखो राजाओं का जो राज था ना, मोनार्की फेल इन 1917. देखो राजा का राज खत्म करेंगे, उसके बाद ही तो दूसरा सिस्टम आएगा. Another system will come once the king's rule is over. And king's rule was here over. अब राजा का राज खत्म हो रहा था. How did it happen? Events of अक्टूबर, ये जितना कुछ भी अक्टूबर में हुआ, इवेंट्स ऑफ अक्टूबर 1917, अक्टूबर में ये सारे इंसिडेंट्स हुए थे, आर कॉल्ड एज रशियन रेवोल्यूशन. इसको ही हम रेवोल्यूशन की कैटेगरी में लेके आते हैं. इसको ही हम रेवोल्यूशन कहते हैं. Socialists have taken up all the power in their hands, and gradually and slowly they were trying to bring changes in Russia. अब रशिया में चेंजेस हो रहे हैं. कहानी लेकिन हमको समझनी पड़ेगी. We need to understand the story. And what is that story? That टॉपिक वाइज समझना है. बैकग्राउंड समझो पहले. सीधे हम वी कैनॉट जंप टू 1917. 1917 के पहले के इंसिडेंट समझो. So this is what that we need to understand is
the Russian Empire in 1914. 1914 में Russian Empire was there, and who was the emperor? Tsar Nicholas II. He ruled Russia and its empire. कहानी है ये 1914 की बात है. That the ruler was Tsar Nicholas II, ruled in रशिया. रशिया में इनका ही राज था, एंड मॉस्को के आसपास इट वाज ऑल द किंग्स रूल. जार निकोलस II का रूल था इन एंड अराउंड मॉस्को. रशियन एम्पायर, they ruled the area in and around Moscow. The most happening place in Russia is Moscow. Capital also. Got it? And क्योंकि आपको ये समझना पड़ेगा कि इनका एम्पायर कितना बड़ा था, कहां कहां ये राज कर रहे थे. So the Russian Empire included, this is GK point of view, very important, current day Finland, Latvia, Estonia, parts of Poland, ठीक है, Ukraine and Belarus. I'll show all these places. Map is given there, children. So you need to understand. ये सारे empire आपको समझना पड़ेगा. Map दिया हुआ है. I'll be showing it to you in the map at the end of the video, where you need to understand. Sorry, the extent of the Russian Empire. Russian Empire का extent समझना बहुत जरूरी है. Got it? We'll be understanding that. अब क्या हुआ, इतना था, and समुद्र वहां पे, which was the sea there, the Pacific, पूरा पैसिफिक तक इनका एम्पायर था. वन ऑफ द बिगेस्ट एम्पायर एंड कॉम्प्राइज टुडे सेंट्रल एशिया पे भी बहुत सारे मेनी स्टेट्स वेर देयर दैट वर इंक्लूडेड इन द रशियन एम्पायर. गॉट इट? तो इसमें आर्मीनिया, जॉर्जिया, अजरबैजान, ऑल दीज प्लेसेस वेर इंक्लूडेड इन द रशियन एम्पायर. एंड the extent of the empire that we have understood, now we have to understand कि कल्चर. देखो, किसी भी कंट्री को समझने के लिए उसका कल्चर समझो. ट्राई टू अंडरस्टैंड द कल्चर ऑफ दैट प्लेस, ट्राई टू अंडरस्टैंड द ट्रेडिशन ऑफ दैट प्लेस. ठीक है? When we understand the culture, the tradition, the customs, तब उस कंट्री के बारे में बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं. कल्चर में the biggest thing that is included is the religion. धर्म. What religion they followed? The majority religion was Russian Orthodox Christianity. Majority religion was, ज्यादातर लोग was रशियन, क्योंकि भाई रशियन है तो ऑब्वियसली इट वुड बी रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी. ऑर्थोडॉक्स मीन्स वेरी ट्रेडिशनल. दिन भर में 4 बार जैसे हमारे यहाँ पे होता है ना, मंदिरों में जाते हैं माथा टेक के, एंड ऑर्थोडॉक्स है ये. घर में बैठ के भी तो भगवान की पूजा हो सकती है, बट देन that's how the customs are followed. That's how the traditions are followed. So Russian Orthodox Christianity was there, which has, क्योंकि Greek, they were very influenced by the Greek Orthodox Church. वहां से the most of the people have accepted Christianity as their religion, and empire में
बहुत अलग अलग तरीके के लोग भी थे, which emerged from Greek culture. मतलब ग्रीक चर्च जो ग्रीक्स फॉलो करते थे, द सेम काइंड ऑफ अ सिस्टम, द सेम काइंड ऑफ अ रिलीजन दीज पीपल वेर फॉलोइंग. लेकिन प्लीज अंडरस्टैंड द एम्पायर ऑल्सो इंक्लूडेड मुस्लिम्स भी थे, कैथोलिक्स, प्रोटेस्टेंट्स एंड बुद्धिस्ट. आप देखो, हम रशिया की बात कर रहे हैं. हमारे यहाँ पे जो धर्म का उदय हुआ, आई मीन बुद्धिज्म इज वेरी मच इंडियन ना. बुद्धा बिलोंग टू इंडिया. सो बुद्धिज्म इज द रिलीजन दैट हैज ओरिजिनेटेड इन इंडिया. लेकिन आपको रशिया तक बुद्धिस्ट का इन्फ्लुएंस मिलेगा. गॉट इट? तो जस्ट सी यहाँ पे ये चीज, व्हाई आई हैड सेड दिस थिंग इज, लुक एट द पावर ऑफ द इंडियंस. इंडियंस को कम समझने की कोशिश नहीं करनी चाहिए. द पावर ऑफ इंडियंस इज इमेंस. आसानी से पीपल अंडरमाइन द इंडियन कल्चर, कस्टम्स, ट्रेडिशंस, बट सी इन रशिया ऑल्सो द बुद्धिस्ट वेर फाउंड. गॉट इट? ये तो हो गया वहां का कल्चर, एक्सटेंट ऑफ द एम्पायर, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट रशियन रेवोल्यूशन. तो भाई पहले रशिया को तो समझ लो. नाउ we will be assessing the economy and society. How was their economy and how was their society? इनकी सोसाइटी कैसे काम कर रही थी? तो क्या हुआ 20th सेंचुरी में? ये भी कहानी है, बिकॉज हिस्ट्री इज ऑलवेज अ हाई टाइप ऑफ अ स्टोरी. 20th सेंचुरी में वास्ट मेजॉरिटी ऑफ रशिया's पीपल वेयर एग्रीकल्चर अगेंस्ट. मेजॉरिटी of population was agriculturist. एग्रीकल्चर में ये लोग इन्वॉल्व थे. दे वर डूइंग लॉट ऑफ एग्रीकल्चर एंड 85% ऑफ द रशियन एम्पायर पॉपुलेशन अर्न देयर लिविंग फ्रॉम एग्रीकल्चर. 85% of Russian population, 85% is a big number, was engaged in agriculture. मतलब इनका जो भी अर्निंग था ना, खाना पीना रहना सब कुछ जो है एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड करता था. सो यू कैन सी हाउ मेनी पीपल. अब क्या है, most of the European countries people were engaged in some or the other occupation. लोग और भी कुछ काम करते थे और भी चीजों में engaged थे, लेकिन Russian population at large were engaged in agriculture. बाकी के यूरोपियन नेशन से this number was quite big. And France and Germany में क्या था, दिस वी नीड टू अंडरस्टैंड. इस चीज को समझना बहुत जरूरी है. 85% ऑफ पीपल आर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर. सो इट वॉज हायर देन अदर यूरोपियन कंट्रीज. हम इट वॉज क्या है, इट वॉज से आपको समझ में नहीं आएगा, फिर कंफ्यूज हो जाओगे. 85% एग्रीकल्चर में, क्योंकि जर्मनी में, फ्रांस में 40% पीपल वेर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर एंड जर्मनी में 50% पीपल. इन फ्रांस 40% वेर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर and Germany
it was 50%. मतलब यहाँ के लोगों के पास और भी ऑक्यूपेशंस थे, लेकिन रशियन के पास उतना ऑक्यूपेशन नहीं था। एम्पायर में कल्टीवेटर्स प्रोड्यूस्ड फॉर द मार्केट एज वेल एज फॉर देयर ओन नीड्स। भाई जो भी प्रोड्यूस करेंगे, गेहूं, चावल, मतलब मेजरली तो दीज कंट्रीज दैट आर देयर, दीज कंट्रीज आर ब्रेड ईटिंग कंट्रीज। ब्रेड मतलब इनका स्टेपल डाइट इज ब्रेड, जैसे हमारे यहाँ दाल चावल है, तो स्टेपल डाइट, देयर स्टेपल डाइट इज ब्रेड। एंड ब्रेड क्या चीज से बनता है? व्हीट। Wheat is needed to make bread, so wheat is there. So Russia was a major, by 85% of people are engaged in agriculture. कितना खाएंगे? So a lot of surplus was there. So Russia was major exporter of grain. पैसा काफी आ रहा था इससे भी. Russia was major exporter of grain. Got it? काफी अनाज हो रहा था on a very large scale. Now what happened? When grain is happening on such a large scale, बाकी के लोग और भी काम कुछ तो कर रहे होंगे. Industry was in pockets. क्योंकि हम इकोनॉमी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, so we will be understanding that industry was in pockets. पॉकेट, अब इसको सिंपल में समझो, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. वॉज, आई एम सॉरी, पॉकेट्स के अंदर नहीं थे, वॉज फाउंड. शर्ट होती है, पॉकेट क्या? पॉकेट इज इन वेरी लिमिटेड प्लेसेस ना. पूरे बॉडी में आपको पॉकेट, पूरी शर्ट में पॉकेट नहीं मिलेगा. पॉकेट या तो आपको यहां पे मिलेगा या फिर पैंट्स में ऊपर में. पॉकेट्स आर एट लिमिटेड प्लेसेस. सो इंडस्ट्री, दैट्स व्हाई दे हैव यूज्ड द वर्ड पॉकेट्स. इंडस्ट्रीज वेयर फाउंड इन पॉकेट्स मींस इंडस्ट्रीज वेयर वेरी लिमिटेड. एंड प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियल एरियाज, कौन कौन से जगह थे जहां पे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वाज हैपनिंग? इट वाज मेजरली इन सेंट पीटर्सबर्ग एंड मॉस्को. तो आपको ये नाम याद रखना है. Industrial production was happening in St. Petersburg and Moscow. Got it? तो क्या हुआ? Productions are happening. अब क्या था? Craftsman undertook much of the production. ज्यादातर production was done by the craftsmen and large factories existed alongside. बड़ी बड़ी factories जो है ना, वो craft workshop के आसपास ही industries lay down थे. Many factories were set up in 1890s. Craft क्या होता है? Packaging, bundling, exporting, ये सारे crafts people do it. अब मोटा वाला कागज चाहिए, कार्टन चाहिए, तो that is done by the crafts people. So large factories, please understand why, existed around देखो क्या है भी यहाँ पे, why I had stopped is कि क्राफ्ट्समैन का काम समझना जरूरी है. यू नीड टू अंडरस्टैंड द वर्क ऑफ द क्राफ्ट्स पीपल. सो अराउंड द क्राफ्ट्स वर्कशॉप जहां क्राफ्ट. So students, industries were found in pockets. Just now that we were discussing, prominent industrial areas were Petersburg and Moscow. Crafts people जो है ना, ज़्यादातर production work they used to take, and large factories were there near the crafts workshop. So what happened? Many factories were set up in 1890s, and with the expansion of Russia's railway network, what happened? Foreign investment increased. मतलब रशिया का along with agriculture, the industrial output also increased a lot.
doubled, quadrupled, doguna, choguna. Okay, so factory workers and craftsmen were almost equal in number. तो इससे आप देख लीजिए how gradually and slowly development was happening in Russia. Got it, children? So further we'll be discussing in the next class. Till then, children, thank you so much and all the best to you.